Hello students, in the last class I started the class with the story of the birth of geometry, and in that I also told you about Euclid's definitions, his axioms, his postulates, his theorems, and how he used his axioms and postulates to prove some other result. Isn't it, children? Today we will be doing the exercises of this chapter. So let's start. Now look at the slide, children. The first question: if a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. हिंदी में, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC is equal to BC है, तो साबित कीजिए कि AC is equal to half AB है. एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए. सेकेंड क्वेश्चन भी देख लीजिए. In the figure, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. आकृति में यदि AC is equal to BD है, तो साबित कीजिए कि AB is equal to CD है. Now students, I have written both the questions here on the board. Just have a look at it. If a point C lies between two points A and B, if a point C lies between A and B, ठीक है, that means they are in a straight line. If a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, यानी यहाँ पर AC और BC आपस में equal है, यानी कि आप given में क्या लिखेंगे? Given is equal is what? Dash डालेंगे. Given AC is equal to BC. ठीक है, that is given. Next, then prove that. तो prove that भी लिख लीजिए. To prove क्या प्रूव करना है आपको? AC is equal to half of AB. ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ. जब आप हिंदी में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे दिया है. यहां पे क्या? टू प्रूफ के लिए सिद्ध करना है, और प्रूफ की जगह पर आप लिखेंगे प्रमाण. ठीक है. अब इस लाइन को अगर देखा जाए, ये एक सिंगल लाइन है, लेकिन हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं AB, और हम क्या लिख सकते हैं? AC प्लस BC, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो हम यहां लिखेंगे AB इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं AB को AC प्लस BC. ठीक है. अब देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर? AC इज इक्वल टू BC, यानी कि आप AC की जगह पर BC डाल सकते हैं और BC की जगह पर AC डाल सकते हैं. और हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे AC चाहिए, तो हम क्या करेंगे? BC की जगह पर हम AC सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. यू आर गेटिंग AB इज इक्वल टू AC प्लस BC की जगह पर AC. सो AB इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2. यू आर गेटिंग 2AC. अब ये 2 को हम B के नीचे लेके आएंगे. सो व्हाट विल यू गेट? इंप्लाइज AC इज इक्वल टू AB बाय 2 नीचे आ जाएगा. यू आर गेटिंग 2. दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. You got the answer here? Now look at the next question. In figure, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. सबसे पहले given लिख लेते हैं. Given if AC is equal to BD, ठीक है. Prove that, यानी to prove क्या है? AB is equal to CD. प्रूफ कर लेते हैं प्रमाण. नाउ हियर क्या दिया आपका? AB इज इक्वल टू CD, सॉरी AC इज इक्वल टू BD. AC इज इक्वल टू BD आपको ये कहां से मिला? क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन. ठीक है. अब ये जो AC है, यहां पर आकृति में देखिए, दिस इज योर AC. इस AC को आप कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज AB प्लस BC. सो इंस्टेड ऑफ दिस यू विल राइट AB प्लस BC is equal to
BD को कैसे लिख सकते हैं? दिस इज योर BD. BD could be written as BC plus CD. BC plus CD. Fine. अब दोनों तरफ देखिए, you got the same number, not same number, I'm just telling like that, BC and BC, और दोनों का सामने में same sign है, तो you can cancel it both the sides. You cancel BC, cancel BC, what are you getting? Implies AB is equal to CD. So did you get your answer? AB is equal to CD. Now children, do you know why I cancelled it directly? The reason is that, see here, AB, जब हम इस BC को उस तरफ लेके जाते हैं, या BC plus CD, write this first, इस BC को वहां पे लेके जाइए, you're getting minus BC, है ना? So this BC and this BC plus BC minus BC gets cancelled. इसलिए हम instead of we can skip this, ये इस स्टेप को हम स्किप करने के लिए हम क्या करते हैं, जब दोनों तरफ में आपका सेम नंबर होता है, दोनों का साइन भी सेम होता है, you can directly cancel it. So now you've got your answer. Now children, ये जो questions है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 and क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है? I hope this both the questions are clear. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. Point C is the midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु है. साबित कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है. Now students, let's read the question once again. If a point C is the midpoint of line segment AB, अगर C जो है AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है. What is the meaning of midpoint? Midpoint माने आपका दोनों तरफ बराबर, यानी कि AC is equal to BC, isn't it? Okay. So prove that every line segment has one and only one midpoint. हमें ये प्रूव करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मध्य बिंदु होता है. तो चलिए प्रूव करते हैं यहां पर. Okay, what is given here? Given is that C is the midpoint of AB. C is the midpoint of AB. ठीक है, प्रूफ करते हैं. टू प्रूफ में आप लिख दीजिए द होल स्टेटमेंट, यू कैन राइट इट डाउन. फाइन. नाउ हियर प्रूफ. व्हाट इज योर प्रूफ? इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वी नो दैट AC इज इक्वल टू BC, यानी AC जो है पूरा AB का आधा है और BC भी पूरा AB का आधा है ना? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? Since, I'll tell you a shortcut of since also बच्चों. जैसे आप therefore के लिए आप क्या लिखते हैं? Therefore, जब भी therefore होता है, how do you put? You डालते हैं, है ना? उसी तरह जब भी आपको since लिखना होगा, आप इसका उल्टा, ऊपर पे 2 डॉट और नीचे पे 1 डॉट. You आप सिंपल से आप कर पाएंगे. ठीक है? तो यहां पे क्या आएगा? Since C is the midpoint of AB, तो हम कैसा लिख सकते हैं? AC जो है, AC is equal to half of AB, है ना? AC जो है आपका AB का आधा है. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. फाइन. अब हम मान लेते हैं कि यहां पर और एक बिंदु है D, जो कि एक मिड पॉइंट है. वी आर जस्ट अज्यूमिंग. ठीक है? तो लेट D be another midpoint of AB. अगर D भी मिड पॉइंट है तो यानी सेम थिंग, AD AB का आधा होगा और DB भी AB का आधा होगा. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? AD is equal to half of AB.
है ना। अब ये दोनों इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं AZ is also equal to half AB and AD is also equal to half AB, isn't it? और हमारा एक्सियम 1 क्या था जो हम पिछले क्लास में पढ़े कि things which are equal to the same things will be equal to each other। तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा? From 1 and 2, ये दोनों इक्वेशंस हमें क्या मिलेगा? We'll get AC is equal to AD, AC is equal to AD, ठीक है। Now according to this figure they are telling AC और AD दोनों ही सेम लाइन है, AC और AD दोनों सेम लाइन है। उसका मतलब क्या होगा कि C और D दोनों सेम पॉइंट है, isn't it? If both the line segments are equal, exactly equal, then their initial point and end point both will be equal। इससे क्या पता चलता हमें? C and D coincide। So what can we write? Therefore, it is clear that C and D coincide। तो अगर कोइंसाइड करेगा इट्स वेरी क्लियर देयर इज ओनली वन पॉइंट ओवर हियर। अगर खाली वन पॉइंट है उसका मतलब क्या हो गया? देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट AB, implies AB has one and only one midpoint। तो अगर AB के लिए एक ही मिड पॉइंट है, आप कोई भी लाइन सेगमेंट लीजिए उसका सिर्फ केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर चिल्ड्रन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुक एट द क्वेश्चन बच्चों। व्हाई इज एक्सियम 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? यानी यूक्लिड की अभिग्रहितियों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? अब बच्चों let's see the question once again. Why is axiom 5 considered a universal truth? सबसे पहले तो हम axiom 5 थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। आपको याद होगा axiom 5 क्या था? That the whole is greater than its part, isn't it? So just I'll write down axiom 5 क्या है आपका? Whole is greater than its part। अगर हिंदी में लिखेंगे तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको ये जो आपका एक्सियम है इसका मीनिंग मैं समझा चुकी हूं। आई लाइक टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। नाउ होल, सपोज आई एम टेकिंग अ सर्कल, ठीक है, ये एक होल सर्कल है। इस होल सर्कल में से आई एम गोइंग टू कट अ स्मॉल पार्ट। नाउ हियर आई एम गोइंग फ्रॉम दिस सर्कल आई एम कटिंग अ स्मॉल पार्ट एंड आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर, यानी कि ये पार्ट, ठीक है, ये होल था, होल में से मैंने एक पार्ट को काट के अलग कर दिया, ठीक है। अब ये होल है और ये उसका पार्ट है, तो ऑब्वियसली होल से निकला हुआ है वो पार्ट, तो होल विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इट्स पार्ट। पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसे जो है यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल कोई भी एप्पल हो, बॉल हो, एनीथिंग यू टेक, और उसमें से एक पार्ट को अगर आप निकालते हैं तो ऑब्वियसली द होल विल बी ग्रेटर देन द पार्ट। और दुनिया के कोई भी कोने में ये सत्य ही रहेगा, इसलिए इसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। आई राइट द आंसर फॉर यू हियर। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? Axiom 5 is considered
is considered a universal truth. क्यों? Because for anything यानी कोई भी चीज के लिए in any part of the world, यानी दुनिया के कोई भी कोने में, it is true, है ना? दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, आप कोई भी चीज ले लीजिए अपने हाथ में, हमेशा हाथ में क्या, इट्स नॉट लाइक हाथ, एनीवेयर, always the whole will be greater than its part. So this is the answer for the question, and this is your question number 7 of exercise 5.1. ठीक है बच्चों? Now अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ postulate की ओर. आपको याद होगा, do you remember what is the fifth postulate? ये जो हमारा फिफ्थ postulate है, which is related to two lines cut by a line, and if it is less than 180 degree, then the two lines will be extended and it will meet somewhere or the other. This was the fifth postulate, है ना? The same postulate can be defined or can be told in different versions, different equivalent versions, of which two versions are given in a textbook. Let's have a look at those versions. These are the two equivalent versions of Euclid's fifth postulate. पहला है, for every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. And the second is, two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. हिंदी में देखिए, पहला पॉइंट है, प्रत्येक रेखा L और उस पर ना स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है. और दूसरा पॉइंट है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती. तो चिल्ड्रन, सो फिफ्थ पॉस्टुलेट में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. ओके, उस पॉस्टुलेट के लिए दूसरा डेफिनेशंस भी हो सकता है, या फिर उस पॉस्टुलेट से हम दूसरा वर्जन्स में भी आ सकते हैं. वो है ये दोनों वर्जन्स. ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन बोथ द वर्जन्स फॉर यू. पहला है, फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L, जो L पे लाई नहीं करता है वैसा एक बिंदु है आपका P. ठीक है, not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. ऐसे कंडीशन में एक सिंगल ऐसा लाइन है जो P से होकर गुजरेगा और L के साथ पैरेलल यानी कि समांतर होगा. So what is it? Here you will have a line which will pass through this point and will be parallel to L. This is the one version that we've got from the fifth postulate, that अगर एक लाइन L है और एक ऐसा पॉइंट P है जो L पर लाई नहीं करता है, तो उस पॉइंट से एक सिंगल यूनिक लाइन, माने केवल एक ही लाइन ऐसा है जो P से होकर गुजरेगा और L के साथ समांतर होगा. This is one version. Okay, now see the next version. The next version is, two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. Two intersecting lines, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं. These are two intersecting lines. These two intersecting lines cannot be parallel to the same line. यानी सपोज इस लाइन के लिए मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना लेती हूँ, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये लाइन इस लाइन के लिए पैरेलल नहीं है, है ना? ठीक उसी तरह अगर मैं इस लाइन के लिए यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना लेती हूँ, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए, बट इट्स नॉट पैरेलल फॉर दिस लाइन. ये है हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट का सेकंड वर्जन की
two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. ठीक है. Now in your exercise 5.2 there is the first question. उसमें पूछा गया है कि fifth postulate को आप उसे किस तरह अपना own words में आप समझा सकते हैं. इस क्वेश्चन के लिए या तो उस आपका जो fifth postulate है उसको easy way में आप लिख दीजिए, क्योंकि वो काफी बड़ा है, some 4 to 5 lines, उसे आप simple language में लिख लीजिए, या फिर you can also write different versions of the fifth postulate so that you can do by yourself. और उसमें और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2. चलिए हम वो देख लेते हैं. Now the question is, does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए. तो बच्चों, here the question is, does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. क्या हम हमारा जो यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट है उससे क्या हम पैरेलल लाइंस का एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बता सकते हैं? चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो हम फिफ्थ पॉस्टुलेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट वाज इट? नाउ if you have two lines and another line cutting it or intersecting it, तो we are getting 4 interior angles, isn't it? यहां पर. और हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या था? If we add both the interior angles and it is less than 180 degree, जिस तरफ में भी 180 से कम है उस तरफ का लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या आ रहा है? हमें यहां पर कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा. यही था हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट. ओके, मान लेते हैं कि हम जब इन दोनों को जोड़ते हैं, यू आर नॉट गेटिंग लेस देन 180 डिग्री, यू आर गेटिंग इक्वल टू 180 डिग्री. जब दोनों को जोड़ते हैं आपको यहां पे आ रहा है इक्वल टू 180 डिग्री. और अगर ये इक्वल है तो पॉस्टुलेट के हिसाब से वो तो जाकर कहीं मिलेगा ही नहीं, है ना. यानी फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट, राइट. अब यहां पे आइए, यहां पर भी मान लेते हैं इन दोनों को जोड़ने पर हमें इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है. तब यहां पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो यहां से भी इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन. यहां भी वे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू गेट हियर वन स्ट्रेट लाइन एंड हियर वन स्ट्रेट लाइन, isn't it? Because when the line is cutting, sum of these two angle is also 180 degree and sum of these two angle is also 180 degree. So what does it imply? This is your parallel lines. ये आपके समांतर रेखा हो गए. तो हमें एक existence of parallel lines तो मिल रहा है from the fifth postulate, isn't it बच्चों? So now how will you write the answer for it? The answer will be if the lines does not intersect in the left side nor in the right side, comma, दोनों तरफ में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो we get a pair of parallel lines. Since क्यों? Since the sum of the interior angles on the same side add up to 180 degree. This is your answer. This is how you will have to write the answer
जरूरी नहीं है कि आप सेम वर्ड्स यूज करो, आपको अब समझ आ गया कि वो क्यों पैरेलल लाइंस है, तो बस उसकी हेल्प से आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर चिल्ड्रन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसे क्लिक कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 इज गिवन हियर, एंड एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2. I have discussed all the questions with you. So students, I have completed the chapter Introduction to Euclid's Geometry, and the exercises of this chapter are little theoretical, and that is the reason why I wrote all the answers on the board so that you can get a clear idea of it. Now you can complete exercise 5.1 and exercise 5.2 by yourself. ठीक है बच्चों? So we'll meet in the next class with a fresh and new chapter. Till then, enjoy your holidays.